Hello everyone. Today we have Neeraj with us today, and he recently cracked Nagaro. So in this video, we'll be going through the journey of Neeraj and how, like, what all stages he has gone through, and whatever question he can recall for us. So hi Neeraj. So hi Salish. Uh, so can you introduce about yourself? So hi Shailesh. Recently I was working in a pro pitch. So now I've cracked the this Nagaro. So basically I was a Java and Spring Boot developer. I was having around 2 years of experience. So where I was a core developer there. So apart from Spring Boot also I have been an experience on Docker and I have done some of the POC. So as per the technical perspective, yeah, like I was working as a development part majorly, not with the database and things. Apart from that, I was a part of deployment and building testing department also. So basically, because I was working in a startup, so I was having an opportunity to work end to end also. So Great, that's all. perfect. So, like, how was the first round? So basically, in Nagaro, I have gone through the 3 rounds. So very first round was a coding, like a test, online test. So I got an test link on around 13th May. तो 30 में आई गॉट अ टेस्ट लिंक वहाँ पे मेरे को बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन थे एप्टीट्यूड था बेसिक कोडिंग क्वेश्चंस थे जो कि लाइक मेरे कोर सब्जेक्ट जावा एंड स्प्रिंग बूट से रिलेटेड थे पूरे प्योर टेक्निकल देन आई वाज हैविंग अ कोडिंग सेट ऑफ क्वेश्चंस वेयर आई वाज हैविंग 2 कोडिंग क्वेश्चंस Hmm. तो वहाँ पर 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे सो एप्टीट्यूड वाज लाइक ओके देन कोडिंग क्वेश्चंस पर रियली बेसिक से काफी अच्छा पूछा उन लोगों ने तो कोडिंग क्वेश्चंस आई वुड से कि थोड़ा सा अगर प्रिपेयर होगा तभी लाइक वी कैन क्रैक इट क्योंकि Hmm. काफी बेस कॉन्सेप्ट उन्होंने टच किया था Hmm. तो Hmm. इट वाज अ मिक्सचर ऑफ जावा एंड स्प्रिंग बूट आई वुड से कि स्प्रिंग बूट का फ्लेवर ज्यादा था उस पर Hmm. then the coding questions were basic not that much hard I could say but yeah if a person is practice na तो वो कर लेगा it Hmm. was good Hmm. so after that I had very first interview on I would say कि 9th or 18th May 18th May को मेरा था next So, like, you only have one online aptitude test with everything yes in yes in one go. correct Okay. Sometimes it so happens that like in our case, what it happened that firstly we were given aptitude. After that, like technical written kind of thing, in which so it depends from like profile to profile. So as you were telling, Gary, in your case, everything was in a single aptitude test. yes Okay. तो Okay. एक्चुअली मुझे सिर्फ एक ही लिंक आया हुआ था उन्होंने Mm-hmm. मुझे अप्रोच किया कि लाइक आपको लिंक आया हुआ है यू कैन अटेंड द टेस्ट तो मैंने जब वो देखा तो इट वाज इंक्लूडेड ऑफ ऑल द साइड लाइक तीनों था एप्टीट्यूड विद द बेसिक क्वेश्चंस व्हिच वर द लाइक द आउटपुट एंड द जावा टॉपिक्स की कुछ कुछ कोडिंग क्वेश्चंस थे कि अगर व्हाट विल द आउटपुट ऑफ दिस कोड and there was a concept like how the spring boot will work in this case xml क्या होता है इस पे you Mm-hmm. could say कि application.yml कैसे integrate करते हैं so these type of questions थे जो basics से MCQs में आए थे Okay. and then the coding questions were there Okay. So after how many days of your first round, you were called in for the second round? so I could remember कि मुझे ना 18th of May में मेरे को next call के लिए schedule किया गया था लाइक 2 और 3 डेज में मुझे कॉल आ गया था कि लाइक यू गॉट सिलेक्टेड आपका निकल चुका है फिर Mm-hmm. देवर लाइक कि अभी हम आपका नेक्स्ट राउंड शेड्यूल करते हैं तो Mm-hmm. मेरा 18th को शेड्यूल होने वाला था पर ड्यू टू सम इशू ना वो हो नहीं पाया Okay. जो हमारा टेक्निकल पर्सन थे वो आ Mm-hmm. नहीं पाए और इन द होल जर्नी ऑफ माय स्विचिंग ना मेरे साथ ये मल्टीपल टाइम्स हुआ है कि मेरा इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो पाया लाइक आई हाँ. वाज इन सिटिंग इन द कॉल एंड देन बिकॉज ऑफ सम रीजन या तो इंटरव्यूअर नहीं है वहाँ पर या Mm. यू कुड से कि वहाँ पर कोई टेक्निकल ग्लिच है कुछ इशू है तो ये मेरे साथ फेस हुआ है तो And इसमें भी मैं सेम मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, like if you are going for an interview and
in some case like you are not able to join on time, or like sometimes it happens you get into a situation where when you don't you aren't able to like join on time, so just simply message the HR, don't keep them waiting, Correct. because Correct. it's okay for an interviewer, like he can be in a job, like he may be doing some other work, but for an like for a guy who is giving interview, it is very much necessary that and I prefer to join at least 2 to 5 minutes before the actual interview, so that I don't get any surprises. And if like Correct. I would check that how my webcam, headphones, everything is working fine and everything, because sometimes it happens like I forgot to charge my laptop, and so many things can happen. So just be prepared. And one more thing, like when you're going for an interview, just like if possible go in a shirt, like be little formal, so that Yes. shows you are how much serious you want that job. Yeah. Okay, so these little things actually differs, make a lot of impact in your overall interview experience. Yeah, we can go ahead. So basically, very first round was Java with Spring Boot, तो technically था total. So यहाँ पे I would say कि like they have touched every single corner of Java. ठीक है. So they have gone through like पहले Java, फिर Spring Boot, and then coding like this. They have planned like. So Java में काफी basic उन्होंने touch किया. And then they have gone to the advanced topic like multi-threading, synchronization, locking. And I would say कि oops के concept उन्होंने like they have told me कि आप एक notepad खोलो और वहाँ पर write करो like how this inheritance will work, if that is an exception then how you will handle it. तो वहाँ पर कुछ scenarios उन्होंने दिए, and then they have moved to the Spring Boot. And Spring Boot में basically apart from annotations and all basic कि वो काफी famous है, then they have been like जो कोर कॉन्सेप्ट होते हैं, IOC कंटेनर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, देन दे वर लाइक कि सर्वलेट क्या होता है, लेट्स सपोज कि आपका एक रिक्वेस्ट आ रहा है, कैसे हैंडल होता है. तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि एक सडनली प्रिपेयर नहीं होता है, वो करना चाहिए कि जब रिक्वेस्ट आता है तो कैसे स्प्रिंग बूट पे पूरे जर्नी पे उसका लाइफ साइकिल होता है. So these were the questions, basic question they have asked. So and then they have moved to the coding questions. The coding questions were very yeah, I would say कि basic थे. Some array questions थे. I think I have been attempt three coding question I have been asked. उनमें तो तीन आपको question like आपको 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे हाँ, in face to face coding interview, questions. and how would you rate them, like difficult, medium, easy? Difficulty level I would say कि easy to medium है. Means जो पहले दूसरे क्वेश्चंस थे काफी थे जो कि सॉर्ट ऑफ आप देख करके आइडिया लगा लोगे, लाइक एरे बेस्ड क्वेश्चन थे. जो आई वुड से कि जो थर्ड क्वेश्चन था वो लिटिल बिट डिफिकल्ट था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लाइक इट वाज काइंड ऑफ अ लिंक लिस्ट, थोड़ा सा लिंक लिस्ट के साइड. इट हैपेंस लाइक ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, लाइक दिस इज काइंड ऑफ ए बार रेजर क्वेश्चन. सो अगर आपने पहले 2 आंसर्स ठीक दे दिए हैं, देन आपसे लाइक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर इट, इट्स ओके. बट अगर आप आंसर कर देते हो, देन देन दैट मीन्स के आप मतलब काफी लाइक यू आर श्योर शॉट सिलेक्शन. सो ये ऑलमोस्ट लाइक मेरे साथ भी कई बार हो चुका है, लाइक इनिशियली दे आस्क यू सिंपल क्वेश्चंस, आफ्टर दैट दे रेज द बार विद ईच राइट आंसर. सो दे वांट टू सी लाइक हाउ मच नॉलेज डू यू हैव. एंड आपके लाइक इसी चीज से वन मोर थिंग मैं बताना चाहूंगा, लाइक oops concept is very much necessary whether you are going for development or a QA role or for an automation engineer. So at 2 or 3 years of experience, these are some basic questions which you can expect, and like giving the right answer of an oops concept will not select you, but like giving wrong answer will surely reject you. कुछ कुछ टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि लाइक आप अगर उन्हें गलत बोलोगे, देन बहुत ही बड़ा नेगेटिव जाता है. तो हाँ, तो जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जस्ट गेट योर बेसिक्स राइट, एंड आप लाइक आई एम श्योर लाइक नीरज विल एग्री दैट विद like medium amount of preparation also, अगर आपको basic पता है and you know some advanced concept like Nagarro and these kind of organizations are within your reach. Correct.
Yeah. तो इस समय जैसे आपने कुछ बोला इम्पोर्टेंट, इसका एक बहुत फेमस ट्रेंडिंग क्वेश्चन इस समय चल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। अभी यहाँ पे Encapsulation वेरी, and abstraction. हाँ, Yeah. वेरी थिन Hmm. लाइन है इसके बीच में। Yeah. और इफ समवन इज हैविंग एन एक्सपीरियंस ना, तो थोड़ा सा वो कैच कर पाए, अदरवाइज काफी लाइक कैची क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। Hmm. तो या बेसिक्स पता होना जरूरी है उसके Hmm. क्वेश्चन। सो देन कम्स टू द थर्ड, एक्चुअली मेरा फिर थर्ड राउंड था अगेन, इट वाज एन सेकंड टेक्निकल राउंड। इट Okay. वाज अराउंड 30 मिनट राउंड। अभी ये बहुत रैपिड फायर राउंड था, क्योंकि आई वुड से कि इंटरव्यू थोड़ा सा, आई वुड से कि वो शायद कहीं पर बिजी थे, और बिजी नहीं, उनको थोड़ा सा हरी था, I would say, Hmm. Hmm. कि उन्होंने डायरेक्ट कॉल ज्वाइन करने के बाद फिर हमारा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गया है। एंड ही अब आफ्टर 1 or 2 क्वेश्चंस ना, मैं क्लियर हो गया था कि ही वांट्स टू पॉइंट टू पॉइंट, लाइक उसको Hmm. ना शॉर्ट आंसर चाहिए था। बिल्कुल, हाँ. मैंने जो पूछा है आप उसका जवाब दें, एंड देन विल गो अहेड। क्योंकि व्हेन ही आस्क्ड ना, तो मैंने स्टार्ट किया जैसे कि वी स्टार्ट, हाँ, पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर वी कम टू द क्वेश्चन एंड आंसर। So he was like, okay, don't come to that way. You tell me what is it, how it works, and ये ऑब्जेक्ट क्या करता है। तो उनको डायरेक्ट स्ट्रेट आंसर चाहिए था। तो दैट वाज अ वेरी रैपिड फायर राउंड, एंड मोस्टली इट वाज इन द स्प्रिंग बूट सेशन। जावा टच किया था, पर मोस्टली ये ना स्प्रिंग बूट पे गया था पूरा Hmm. फ्रेमवर्क के पर्सपेक्टिव से। Hmm. And then after that, like 30-minute round, I would say कि it was very like good round, because फिर उन्होंने स्प्रिंग बूट को काफी अच्छे से टच किया, हाइबरनेट के बारे में पूछा था बेसिकली, एंड देन वाईएमएल की प्रॉपर्टीज एडिट कैसे करना होता है, देन रेस्ट एपीआईज बनाने के लिए तुम्हें क्या प्रोसेस होती है, और लेट्स सपोज कि आपका ऑब्जेक्ट्स के स्टेट्स क्या होते हैं, लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर देयर। तो Hmm. बेसिकली फ्रेमवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन काफी थे सेकंड राउंड पे। Okay. Okay. And then last round was an, then I got like call कि हाँ आपके rounds clear हो चुके हैं। The HR Okay. round, last round was an HR Hmm. round. तो like the managerial round, so that was like आपका जो second round था, second technical round था, so that was more of a managerial round. Yes, yes. Hmm. I would say कि मुझे उसका फ्लेवर मिल नहीं पाया, क्योंकि टेक्निकली स्ट्रांग था काफी, Hmm. क्वेश्चंस पूरे टेक्निकल थे, पूरा टू द पॉइंट आई हैव टू आंसर देयर। Hmm. पर लाइक उतना हमारा बातचीत हो नहीं पाया इंटरव्यू से, क्योंकि Hmm. ही वाज ऑन समथिंग आई डोंट नो, बट वो उन्होंने आया, then he was like, he has given his name, asked my name, and then he started with like, let's start with your introduction. And after the introduction, like he was started with the technical question. So सीधा इन rapid fire start किया, and after 30 minutes he's like, okay, I'm done, do you have any question? I don't think so he asked or not. It's like, okay, I'm done, so Neeraj, I'll submit the your feedback to HR, and HR will come back to you. And Hmm. then it's like we agree to each other, and Okay. then उन्होंने like salary वगैरह का कोई कुछ discussion नहीं, like your नहीं नहीं location, नहीं, location लोकेशन और कुछ भी कुछ, नहीं था उस okay, राउंड okay, all technical. में, ऑल टेक्निकल था। Okay, okay, that happens. हाँ, तो ये सारा मेरा आया था फिर एचआर के साथ। तो थर्ड एक्चुअली जो मेरी एचआर थी वही मेरे को फ्रॉम द फर्स्ट राउंड वही कोऑर्डिनेट कर रही थी। Hmm. तो जो भी कॉल आता था मेरा उनसे ही आता था। एट लास्ट ही वाज अवेयर अबाउट मी कि हाँ मेरा कैसा चल रहा है, व्हाट वाज द Hmm. लोकेशन एंड ऑल। इवन दो कि मैंने पूछा भी था कि एचआर राउंड में हु विल बी देयर, एंड ही वाज शी वाज लाइक, मैं ही हूँ, आप अपना एक्सपेक्टेशन वगैरह मुझे ही बता दो, मैं ही हाँ. आऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो तो ये ऐसा चला। like आपको नेगेरो का कॉल डायरेक्टली like from the HR आया था, no consultancy, no नो third नो, party. देयर इज अ कंसल्टेंसी, Okay. वहाँ पर सुकीन मिस्त्री एक है, उनका स्काई लैंडर सॉल्यूशन में भी द कंपनी, वहाँ से Hmm. मुझे कॉल आया था। Okay. फिर असिस्ट करते हुए फिर वहाँ पर एक पर्सन है सुकीन, तो फिर उन्होंने मुझे पूरा असिस्ट किया। Okay. Okay. Great. And आपके second round के बाद HR round like कब हुआ? ये ना मेरा 4 जून को मेरा हो गया था कि हाँ आपका सिलेक्शन हो चुका है, दोनों राउंड निकल चुके हैं, Hmm. डॉक्यूमेंटेशन वगैरह इनका आया, सारा सबमिट।
उसके बाद HR आई थिंक 11th जून को शेड्यूल हुआ था। ओके। और एंड HR में लाइक वेदर मतलब डायरेक्टली आपसे सैलरी डिस्कशन नेगोशिएशन वगैरह हुआ या फिर कुछ HR रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए? आई वुड से कि सैलरी तो उनको पहले से ही उन्होंने पूछ लिया था, हम्म क्योंकि शी वाज द वन स्टार्टिंग से वो कोऑर्डिनेट कर रही थी। तो हम्म उन्होंने पहले एक्सपेक्टेशन पूछ लिया था, इवन दो कि हम्म, आई टोल्ड कि ठीक है, हम लाइक HR राउंड में डिस्कस करेंगे। शी इज लाइक क्या? हाँ मैं ही आने वाली हूँ, तो यू कैन से यू कैन टेल। हाँ हाँ। तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने उनको बता दिया था। फिर बेसिकली HR राउंड में ना बेसिक क्वेश्चंस थे कि हम्म क्या है आपका, कैसा क्या काम है। फिर आप उन्होंने पॉलिसीज बताया, हम्म सैलरी का बेसिक डिस्कशन हुआ, और हम्म कंपोनेंट्स वगैरह बताया, ये हम्म। सारी चीजें। ओके। लाइक जो बेसिक HR क्वेश्चंस लाइक आपने क्या काम किया है, उसके अलावा आपसे ये नहीं पूछा कि आप क्यों चेंज करना चाह रहे हो या क्या हाँ प्रॉब्लम है हाँ, आपके करंट ऑर्गेनाइजेशन में? या तो दोज आपने वर कैसे सम आंसर ऑफ किया द। उसे, लाइक कि आप क्यों चेंज करना चाह रहे हो? सो बेसिकली मैंने यही बोला था कि आई एम लाइक एमिंग फॉर एन बेटर अपॉर्चुनिटी विद करियर ग्रोथ। करियर ग्रोथ के साथ आई नीडेड अ फाइनेंशियली ग्रोथ। तो हम्म। मैंने ऐसे उसको टैकल किया। या इट्स गुड बिकॉज जब लाइक अगर आप सच बोल रहे हो ना एंड योर पैकेज इज लो एंड यू आर टेलिंग द ट्रूथ, सो HR विल आल्सो अंडरस्टैंड दैट एंड यू विल बी एबल टू जस्टिफाई वॉट एवर द अमाउंट यू आर आस्किंग फॉर। एंड ये लाइक सच्चाई बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप सिंपली कहोगे नो आई वांट ग्रोथ प्रोफेशनल ग्रोथ, जो रटे रटाए आंसर होते हैं, तो वो बड़े अजीब लगते हैं, HR कैच कर लेता है उन्हें। तो बेटर है लाइक वॉट एवर आप जो फील कर रहे हो उसे बताओ, तो HR भी आपके साथ कनेक्ट होगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके लाइक आपको कभी कभार ज्यादा भी मिल जाता है। इट या हैपेंड। वेरी फर्स्ट जो मेरा ऑफर आया था, हाँ। इवन मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा ही दिया। ओके। हाँ। क्योंकि लाइक आई वाज, उन्होंने पैकेज बोला मेरा एक्सपेक्टेड में। फिर ये हुआ था कि ठीक है आपको इतना मिल जाएगा, पर दे हैव आस्क्ड कि आपका फिक्स इतना होगा, इस पे लाइक दिस सैलरी में आपका फिक्स और वेरिएबल भी होगा। आई वाज लाइक नो नो, आई नीडेड ऑल द फिक्स। हम्म देन शी वाज लाइक कि ठीक है, तो फिर मैं आपका कंपोनेंट इतना बढ़ा देती हूँ, तो ये आपका वेरिएबल पे आ जाएगा। तो हम्म ऐसा होता है, हम्म दे विल बी लाइक एक्सटेंडिंग योर ऑफर होता हम्म। तो लाइक नैगारो वाज एबल टू एक्सपेक्ट लाइक जितना आपने है। करेक्ट, फर्स्ट राउंड से पहले आपने जितना बोला था उतना आपको इन द थर्ड राउंड दे एक्सपेक्टेड था, दे ऑफर्ड दे यू। दिया था। करेक्ट, हम्म। एंड उन्होंने आपका दे दिया। लाइक आपने बताया था 11th जून को आपका HR राउंड हुआ था, तो उसके कितने दिन बाद आपका ऑफर लेटर आ गया था? और 11th जून को हुआ था, तो नो 11th जून को इफ आई रिमेम्बर कि ऑफर लेटर शायद मेरे हाथ पे आया था, शायद। हाँ लाइक 11th जून को ही आपका ऑफर आ गया था? हाँ, ओके, विद इन द सेम मीन्स डे? आई एम नॉट श्योर। थोड़ा सा मुझे इस पे दिक्कत हो रहा है, क्योंकि उस समय ना काफी सारे राउंड्स थे और मैं क्लियर हो नहीं पा रहा था। जस्ट हम्म से कि हाँ, मेरा जो एक्चुअली मेरे को कंपनसेशन स्ट्रक्चर जो मेल होता है, हम्म। वो उस टाइम तक आ चुका हाँ, लाइक नैगारो में क्या था। होता है, हाँ, आपको ऑफर लेटर देने से पहले दे विल सेंड यू द ब्रेकअप एंड एवरीथिंग, सो दैट ब्रेकअप एंड वंस एवरीथिंग, लाइक यू आर यू सेटिस्फाइड विल देन एक्सेप्ट। ओनली दे रिलीज द फाइनल ऑफर लेटर। तो मतलब ये करेक्ट, अच्छी चीज है, बिकॉज कई बार क्या होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन से ऑफर लेटर आ जाता है, देन आप कॉल बैक करते हो, फिर वो रिवाइज ऑफर लेटर आता है, तो वो शायद मे बी करेक्ट। उनके एंड पे प्रॉब्लम होती हो। बट नैगारो में ये अच्छी चीज है दैट वो ब्रेकअप वेरी पहले फर्स्ट भेजते हैं। मेल में एक ब्रेकअप आता है, यू हम्म। विल सी द ब्रेकअप, फिर आपको एक्सेप्ट करना होता एक्सेप्ट करके हाँ, है। देन फिर आपको फाइनल ऑफर लेटर आता है। वंस यू विल एक्सेप्ट, तो अराउंड 1 or 2 days में आपको फाइनल ऑफर हम्म। रिलीज हो ही जाता यस यस यस। है। आई वुड से कि कुछ घंटों पे ही शायद हो जाता है लास्ट में। हम्म। एंड नीरज, आपको ज्वाइनिंग से पहले प्री ज्वाइनिंग गिफ्ट्स वगैरह रिसीव हुए? हाँ, एक्चुअली मुझे ना लैपटॉप और बैग्स वेरी फर्स्ट हो गया था, क्योंकि ओके। मेरा 11th को पूरा फाइनल हो गया था ऑफर वगैरह, तो हम्म उन्होंने जो भी शिपिंग करी। मेरी ज्वाइनिंग 27th को थी, ट्वेंटी हम्म सेवन्थ ऑफ जून मेरा ज्वाइनिंग। मुझे 26th को मेरा लैपटॉप एंड बैग रिसीव हो गया हम्म था। दो वेलकम किट ऑल्दो नहीं आया था, आई वाज इन डाउट कि क्या हो गया। आई हैव सीन इन द लिंक्डइन पोस्ट प्री हाँ। ज्वाइनिंग किट आता है, तो वो भी मुझे कल ही आ चुका है। अभी तक मैंने उसे ओपन नहीं किया हुआ है,
ये Okay. अभी मेरे पास रखा हुआ है वो, तो Great. अभी उसको करना है। Perfect. तो Perfect. बेसिकली एक लैपटॉप है, बैग है, और अभी उस पर देखना पड़ेगा मुझे वेलकम किट में क्या। एंड नगारो में शायद आपको अभी 3-4 दिन हो गए, तो आपको लाइक कैसा फील हो करेक्ट। रहा है ज्वाइन करने के बाद? तो ये मैं बोलूंगा कि 2 दिन तो पूरा इंडक्शन था। हम्म। द फर्स्ट डे वाज द होल मीटिंग्स, लाइक आपका एचआर इंडक्शन से स्टार्ट होता है, प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाता है कि कैसे आपको एलोकेट किया जाएगा। देन सेकंड वाज लाइक पेरोल के बारे में आपको बताया जाता है। देन आपको लाइक क्या क्या लीव पॉलिसीज हैं, हम्म। आपको लाइक फन एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं। बैंक। हम्म। देन सेकंड डे पे आपको इंडक्शन पे ये बताया जाएगा कि लाइक ये बैंक्स हैं आपको सैलरी के लिए, so which bank you wanted to opt, आपके पास अगर उस बैंक का अकाउंट है तो फाइनली यू कैन गो विद दैट, इफ नॉट यू कैन आस्क इट। लाइक पूरा आपका मीटिंग्स होता है हर एक बैंक के साथ। इंडक्शन, एक हाफ पहले हाँ 2 दिन आपके इंडक्शन है, इंडक्शन में? इंडक्शन पे गया ग्रेट ग्रेट। था। एंड देन सेकंड डे इटसेल्फ मुझे ना वो आ गया था। सेकंड डे इटसेल्फ मुझे एक प्रोजेक्ट एलोकेशन के लिए ओके। मैसेज आ गया था, बिकॉज पूरा एआई बेस होता है इनका प्रोसेस पे। हम्म। आपका इनका एक टूल है, उसके बेसिस पे आपको प्रोजेक्ट एलोकेट होगा। ग्रेट। तो मुझे सेकंड डे पे एक मैसेज आ गया था कि या दिस इज योर प्रोजेक्ट। सो पर ड्यू टू लेस ऑफ एक्सपीरियंस आई वुड से कि उन्हें लाइक एक्सपेक्टेड था 3 ईयर एक्सपीरियंस गाय, ओके। बट आई वाज अ 2 ईयर एक्सपीरियंस गाय एज माय एक्सपीरियंस, हम्म। तो क्योंकि मेरा लाइक प्रोफेशनल वर्क। आपके जो इंटरव्यू लेते हैं तब उस टाइम आपका प्रोजेक्ट, आपको कुछ पता नहीं था लाइक आप क्या कौन सा प्रोजेक्ट में जाने वाले हो, क्या कैसे नो, इंटरव्यू के लाइक टाइम? उन्होंने नहीं नहीं इंटरव्यूज के लाइक एक्चुअली मैं ना किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए हायर नहीं हुआ। हम्म। तो जो भी लाइक मुझे हायरिंग के टाइम में बता दिया गया था कि आप किसी भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए हायर नहीं हो रहे हैं, हम्म। बट लाइक काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, आपको आफ्टर ज्वाइनिंग आपको सारी चीजें बता दीजिए। ओके ओके। ग्रेट। परफेक्ट। एंड जो आपका लाइक आप जो बता रहे हो ज्वाइनिंग के बाद आपको प्रोजेक्ट तब एलोकेट होता है लाइक 2 या 3 दिन के बाद? एंड हाँ, एक्चुअली मुझे इंडक्शन में ही और माय इन एचआर समवेयर आई गॉट टू नो कि आपको हाँ, एक्चुअली बिफोर ज्वाइनिंग भी आपका ना कुछ कॉल्स होते हैं, हम्म। ये आपका इंट्रोडक्शन के लिए वो करते हैं, लाइक कंडक्ट कराते हैं कॉल्स, कि हम्म। ताकि आपको एक अच्छा नॉलेज मिल सके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो मैं नगारों में जब इनके उसमें ज्वाइन हुआ था तो मुझे पता चल गया था क्वेश्चन आंसर के सेशन पे कि आपको बिफोर 2 डेज ही, लाइक विद इन 2 डेज आपको एक आ जाएगा ऑफर कि हाँ दिस इज द ग्रेट। प्रोजेक्ट, और आपको ये प्रोजेक्ट ऑफर हुआ है, एंड देन दे विल डिस्क्राइब अबाउट द प्रोजेक्ट। फिर लाइक इंटरनली भी क्लाइंट इंटरव्यू होता है, बिकॉज हम्म। वो फर्स्ट प्रोजेक्ट के बाद मुझे सेकंड प्रोजेक्ट भी कल ही आ गया था, और हम्म। कल ही मेरा क्लाइंट इंटरव्यू भी शेड्यूल हो गया। तो या ग्रेट। एक चीज और है कि यहाँ पे क्लाइंट इंटरव्यूज भी होते हैं। ओके ग्रेट। एंड नीरज, जैसे लाइक यू आर कमिंग फ्रॉम ए स्टार्टअप आपने बताया, तो करेक्ट। स्टार्टअप से एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाने में तो आपको लीव्स और पॉलिसीज, वर्क कल्चर अभी तक लाइक कैसा, आपको क्या फर्क लग रहा है? बीइंग ऑनेस्टली अभी मुझे ना कुछ समझ में आ नहीं रहा, क्योंकि मेरी स्टार्टअप में क्या था मेरी कंपनी में कि मुझे पूरा ईयरली में एक साथ ही लीव लाइक आ जाता था। हम्म। ये मंथली बेसिस पे नहीं, साइकिल नहीं चलता। तो हम्म। ये था कि आपका सीधा एक बार लीव क्रेडिट हो जाएगा, एंड देन यू हम्म। कैन टेक लीव व्हाटएवर ऑन व्हिच डेट यू वांट। तो हम्म। वो सारा ही लीव था, लाइक प्लान लीव, सिक लीव, सभी कुछ इंक्लूडेड था उसमें। हम्म। बट हियर आई एम सीइंग कि ये लाइक मंथली क्रेडिट होने हाँ, वाला है इट ऐसा। हैपेंस लाइक कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस में मंथली क्रेडिट होता है। एंड लाइक मुझे भी पसंद नहीं है मंथली वाला सिस्टम, बिकॉज उसमें क्या होता है, आपको ज्वाइनिंग के बाद ही अगर आपको लीव्स लेनी पड़ जाए तो आपको एल सडनली डब्ल्यू तो पी नहीं ले सकते। एल डब्ल्यू पी आपको लगानी पड़ेंगी, लीव विदाउट पे। अदरवाइज लाइक उसमें बेनिफिट क्या होता है अगर आपके एक साथ क्रेडिट हो जाता है, कि लेट्स से आपको ज्वाइनिंग के बाद तुरंत अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो आप तब लेके फिर बाद में 3-4 महीने आप लीव्स ना लो। तो ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग अलग कल्चर है, लीव पॉलिसीज है। बट ओवरऑल आई होप आपको नगारो में लाइक मजा आएगा, बिकॉज एक
it's a name, it's a brand, Nagarro. So good luck, Neeraj. I hope हम एक साल बाद we can review how the things are going with you. And Correct. thank you for sharing your experience. Thank you, Shailesh, for assisting me with the Nagaro also, क्योंकि like मैंने आपको connect किया था शायद, Sure, no तो problem. ask कि किस organization को join करना चाहिए. Yeah. I would say कि मेरा experience काफी अच्छा हुआ. Perfect. Great, Neeraj. We'll meet again. So, good luck with Nagarro. Thank you.